Okay, beta. Good. Chale ji, today we are starting from chapter number 15. Chapter number 15 is chapter 15 is Pakistan in last decade of last decade of 20th century. Pakistan in last decade of 20th century. There are four individuals who ruled the country in last decade. Clear? चार लोग थे, दो दफा बेनजीर भुट्टो and two times Nawaz Sharif ruled the country. Beta, the question which can be given, the question which can be given related to these people is dismissal based question. Like ये देखिए कि आप एक गवर्नमेंट का पर्सन जो होता है, वन गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द टेन्योर और द ड्यूरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? 5 years. 5 years. इट मींस इन चार टर्म्स को कंप्लीट होने में कितने टाइम्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए? 20 years. ये 10 साल में चार बंदे खत्म हुए, मतलब 2.5 year अगर आप देखें, रफली देखें तो 2.5 year इज द term of one person. Is it clear? Acha. So is a term of one person. For instance, the people who were unsuccessful due to these things, these people were, these individuals were dismissed. ऐसा ही है? Now we are moving towards first person, person A. Person A is Benazir Bhutto. जी बेटा, Benazir Bhutto. Yes, Benazir Bhutto was Prime Minister of Pakistan after death of Ziaul Haq. Benazir Bhutto was, जी बेटा, Benazir Bhutto was Prime Minister after death of Ziaul Haq. Clear? She was the first. Let me just give you a few facts regarding Fawad. So let me just tell you a few facts regarding him. Number one, her. So first female PM of Muslim world. Number one, first female prime minister of Muslim world. She was the one. Next, she also took a lot of steps for the betterment of uplift of women status. Works related to uplift status of women. Is it clear? Is it clear, everyone? Done? Now, another important thing is examiner can ask you the question related to success and failures of Benazir Bhutto in this time period. Whenever there is a question related to success and failure, how can we start this question? This question starts from the word, how successful was Benazir Bhutto? How successful was Benazir Bhutto? So
Simple question is, how successful was Benazir Bhutto as PM of Pakistan between 1988 to 1990? Explain your answer. Beta, after the death of Ziaul Haq, elections held in Pakistan. You know, Zia dismissed Junejo in 1988. When Zia dismissed Junejo, तो Zia ने पहले से अनाउंस किया हुआ था कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, लेकिन जिया के डेथ हो गई तो ये इलेक्शन एक महीना पोस्टपोन हो गए. फिर इतनी देर में बेनजीर जो है, शी बिकेम वेरी पॉपुलर. जिया वॉज अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो. एमआरडी मूवमेंट के अंदर जिया ने तो बेनजीर भुट्टो को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था. जिया इवन ही imprisoned Zia imprisoned Benazir Bhutto for a short period of time even. Yeah? So the person is कि Benazir Bhutto had many successes and many failures as well. Successes number 1 and number 2 is failures. Successes and failures. Is it clear? Now what is in the successes? बेनजीर भुट्टो के क्या सक्सेस थे इतने बड़े बड़े? यस बेटा, सबसे मेन काम, शी वांटेड या शी रिमूव द अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ जिया. सबसे पहला, शी रिस्टोर्ड बेनजीर restored democratic culture by ending Zia's authoritarian या dictatorial policies. डिक्टेटर क्या करता है? वो बैन कर देता है ना हर चीज को. जिया डिक्टेटर था तो ही बैंड ऑल दीज थिंग्स. फॉर एग्जांपल, वुमेन एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन राइट्स, ही बैंड मीडिया, ही बैंड स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियंस. जिया ने सब कुछ बैन किया हुआ था, मतलब ही हैड स्ट्रिक्ट कंट्रोल. ठीक है, तो जिया ने जब सारी चीजों को बैन कर दिया, इतना सब कुछ बैन होने के बाद, आफ्टर बैनिंग ऑल दीज थिंग्स, ही हैड ऑल द पावर्स इन हिज हैंड्स. तो बेनजीर जो है, शी रिस्टोर्ड द पॉलिटिकल ऑर्डर. शी रिस्टोर्ड द पॉलिटिकल ऑर्डर. इज इट क्लियर? सो शी लिफ्टेड ban on media, then press, then trade unions, student unions, etc. Is it clear, beta? Yeah. Ended that thing. जिया ने जो है वो सबसे पहले ये काम किया. सेकंड काम क्या किया जिया ने? जिया का बेनजीर का, सॉरी, जिया कह रहा हूं, बेनजीर ने ये काम पहले किया. सो हेंस शी वाज सक्सेसफुल इन हैंडलिंग द पॉलिटिकल प्रेशर व्हिच वाज क्रिएटेड बाय जिया. क्लियर? सेकेंडली, she worked on military enhancing military capabilities. She worked on enhancing military
capabilities of Pakistan. What was that military capability? कौन सी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया इन्हें? नंबर वन, बदर वन भी स्पेस में हमने भेजा, और मिसाइल इंटीग्रेशन जो प्रोग्राम था वो भी पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। ठीक है, सो एज गवर्नमेंट स्टार्टेड बदर वन, अच्छा स्टार्ट किया या सेंट बदर वन इनटू सैटेलाइट कर लें, इनटू स्पेस कर लें, सैटेलाइट कह रहा हूं, बदर वन एक सैटेलाइट था, सेंट बदर वन इनटू स्पेस एंड मिसाइल integration program. Yes, beta. These were the main steps. Hence, she was successful in. Hence, she was successful. हाँ जी, ये सारी फर्स्ट टेन्योर की हैं। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ही करा रहा हूँ, मैं कंबाइन नहीं करा रहा दोनों टेन्योर। आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन ऑफ फर्स्ट टेन्योर। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द टाइमलाइन एज वेल। मैंने सिर्फ टाइमलाइन सिर्फ फर्स्ट टेन्योर की लिखी है, तो आई एम जस्ट डीलिंग विद द फर्स्ट टेन्योर ओनली। थर्ड, relations with India improved. Relations with India improved. Relations with India improved when she invited Rajiv Gandhi, when she invited Rajiv Gandhi to attend fourth SAARC session at, कहां पे हुआ था? No, fourth SAARC session held at Islamabad. Is it clear, beta? Done. So the relations between India and Pakistan were worst in 1980s. आपको पता है ना, खालिस्तान इशू हो गया था, मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो इंडिया ने किसको ब्लेम किया? पाकिस्तान को ब्लेम किया। इंडिया ब्लेम पाकिस्तान। अच्छा, फिर में खालिस्तान का इशू हुआ तो इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान। सिंधु देश की मूवमेंट लगी तो पाकिस्तान ने किसको ब्लेम किया? इंडिया। अच्छा, फिर आ जाए 1980s में, इंडिया थ्रेटेंड पाकिस्तान बाय यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। क्रिकेट डिप्लोमेसी ना होती तो शायद इंडिया हमारे पे अटैक कर देता। इट वाज ए ग्रेट चांस। ठीक है जी, बैठो भी। अच्छा, सो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो भी एक, इट वाज ए बिग चांस। तो अब ये सारी चीजें करने के बाद जब आप एक अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो, इवन आफ्टर दैट ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया स्टार्टेड। दिस इज अ गुड स्टेप ना। अच्छा, बेनजीर भुट्टो के टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कंबाइंड है, और वो सारी टर्म्स में आएंगे विद ऑल दीज पीपल। यस बेटा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। पहले नंबर पे सबसे बिगेस्ट रीजन बेनजीर भुट्टो के टाइम पीरियड पे जो फेलियर ऑफ बेनजीर भुट्टो है, फेलियर ऑफ बेनजीर भुट्टो, जस्ट राइट वन इंपॉर्टेंट नोट लिखें यहां पे। नोट क्या लिखने आपने? व्हाट यू पीपल आर सपोज टू राइट? नोटिस के फेलियर्स ऑफ बेनजीर was the cause of her dismissal. Failures क्या? Failures caused
caused dismissal. Is that clear, beta? So failures of Benazir Bhutto. Number one, she could not maintain law and order. She could not maintain law and order due to, but she could not maintain law and order due to what? Due to opposition, opposition कह रहा हूँ, due to Kalashnikov culture, Kalashnikov culture and drug trafficking. Drug trafficking. The online students. Kalashnikov culture, what does it mean? Kalashnikov culture mean the culture of keeping arms in possession. For example, after Russia-Afghan war, many people in Pakistan used the smuggled guns, and urban areas like Karachi, Lahore, Hyderabad, इसमें हर घर के अंदर गन्स होती थी और छोटी छोटी बातों पे people started killing each. तो इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा. It was a very worst thing in Pakistan history. Next, drug trafficking. Afghan migrants came in Pakistan. 3.5 million refugees came to Pakistan. और वो अपने साथ क्या लेके आए ईमान? They brought heroin नहीं सिर्फ लेके आए, सारी ड्रग्स लेके आए. Basically they were business, they had business of that thing. तो उन्होंने सारे ड्रग्स कहाँ पे बेची? पाकिस्तान में. और पाकिस्तान में जहाज जो है वो दिन में बहुत ज्यादा उड़ने लगे, रातों में भी उड़ने लगे. ऐसे ही था. So there were so many drug addicts in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर मिलियंस में अफगान रेफ्यूजीज मिलियंस में आए एंड मिलियंस में ही उन्होंने लोगों को एडिक्ट किया. So that was a big problem. So Benazir could not reduce these problems. That is how she was unsuccessful, and later on she was dismissed due to this poor law and order condition in Pakistan. Clear? The online students, is it clear, beta? जी sir. G. Next is she could not improve economy of Pakistan. She could not improve economy of Pakistan although she was economist by profession. कहाँ से graduated थी ये? बेनजीर भुट्टो, ऑक्सफोर्ड से. Political economy में she had degree in political economy, which is very advanced degree, like it's very good degree regarding economics and political history. Clear? So she could not improve economy of Pakistan, although she worked so hard, but she was unable to do that. Now, what was the issue in that condition? Because of lack of US aid, which was stopped after प्रेस्लर अमेंडमेंट. नहीं, प्रेस्लर अमेंडमेंट. इस अमेंडमेंट के बाद प्रेस्लर अमेंडमेंट. बेटा यूएस ने Pakistan's economy in 1980s was called bubble economy. What was that economy? Bubble economy. Why we call it bubble economy? Bubble इसलिए कहते हैं बेटा कि हम किसी और पे डिपेंड हो रहे होते हैं, हम अपनी कंट्री की रिसोर्सेज पे रिलाय नहीं करते. 1980s में हम किस पे रिलाय कर रहे थे?
यूएस डॉलर्स पे, यूएस डॉलर्स पे। हमारे मुल्क में जो भी चीज होती थी, जो भी करेंसी अच्छी थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था कि यूएस वाज गिविंग लॉट ऑफ एड। यस बेटा, इसका बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। सो लॉस ऑफ यूएस एड से क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जी हुसैन, प्रॉब्लम वाज कि पाकिस्तान कुड नॉट सर्वाइव विदाउट यूएस एड। बबल इकॉनमी क्यों कहा था मैंने? वो बबल जो है वो एक्सप्लोड कैसे करेगा? जब अमेरिका ने अपना हाथ खींचा तो हमारी बबल फट गई, तो हमारी कंट्री भी सारी की सारी धड़ाम से नीचे गिरी। दैट वाज द थिंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, शी failed to fulfill she failed to fulfill she failed to fulfill her promise। इसका भी अपने अब्बा की तरह एक ही प्रॉमिस था। यस, फूड क्लोथ एंड पीपल्स पार्टी का बेटा हमेशा से ही रहा है एजेंडा, आज भी पीपल्स पार्टी का यही है। अब जरदारी भी यही कहता है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। बट सिंधी में वो कहता है पाकिस्तान खपे। व्हाट डज इट मीन? हम पंजाबी वाले तो समझ लेते हैं ना, खपे हम तो कहते हैं कि साइड लाइन करना, भाड़ में जाए। बट इन सिंधी पाकिस्तान जिए कहते हैं हम, ठीक है। खैर, सो जरदारी जो है वो भी यही कहता है, फूड क्लोथ एंड शेल्टर एंड, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी पीपल्स पार्टी आई है पाकिस्तान गरीब ही हुआ है। पाकिस्तान faced that was the most important problem which Pakistan faced whenever People's Party came into power. Clear? जी online students, is it clear everyone? Is it clear everyone? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. She failed to fulfill her promise of food, cloth and shelter. Hence, people did not want her to continue. हमारी अवाम भी तो बेसब्री है ना बेटा, 2 साल में क्या कर सकता है कोई? सबर तो है ही नहीं, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट बेटा, there is one more important thing, that is Benazir faced opposition by an alliance। अच्छा, बेनजीर का सबसे बड़ा दुश्मन नवाज शरीफ था, आज भी था, आज भी था। जब तक बेनजीर जिंदा रही तब तक नवाज शरीफ उसका सबसे बड़ा हेट्रेड थी, बेनजीर और नवाज शरीफ की आपस में। सो नवाज शरीफ ने बेनजीर को कब से तंग करना शुरू किया? 1990 से, 1989 से। क्लियर? सो बेनजीर फेस्ड अपोजिशन बाय एन अलायंस IJI। इसको अंडरलाइन कर ले, ये 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है आपका। IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में बेटा देयर वर 8 पॉलिटिकल पार्टीज, इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज हु वांटेड बेनजीर भुट्टो टू रिमूव। आपको पता है बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इन 8 पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, फिर भी बेनजीर वन द इलेक्शन। और इस पार्टीज को, इन मौलवियों की पार्टीज को लीड कौन कर रहा था? सबसे बड़ा मौलवी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वाज द बिगेस्ट मौलवी ऑफ एट दैट टाइम। ही वाज द वन हु वाज सेइंग कि रूल ऑफ बेनजीर जो है ना, या रूल ऑफ वुमेन जो है ना, ये तो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है, हलाल ही नहीं है। जिया का बेटा था ना, मुंह बोला बेटा था। जिया खुद मुंह से कहता था कि नवाज शरीफ मेरा बेटा है। नवाज शरीफ इज माय सन। क्लियर? तो
नेक्स्ट बेटा, बेनजीर फेस्ड अपोजिशन बाय an an alliance like IGI led by नवाज भाई। मैं नवाज लिखूंगा, शरीफ आगे आप खुद लिख लीजिएगा। मियां साहब, बेटा इतना लंबा नाम नहीं लिख सकता मैं, नवाज शरीफ। चलो यार तुम्हारी एफिलिएशन है तो तुम्हें मैं लिख देता हूँ, ये लो अब सही है। सो faced opposition by an alliance IGI led by Nawaz Sharif. Benazir could not face criticism. Benazir could not face criticism and barely survived in and Benazir barely survived in no confidence motion. No confidence motion या movement. Which Prime Minister of Pakistan has been dismissed by using no confidence? इमरान खान को किया। अभी जो इमरान खान को डिसमिस किया, वो कैसे डिसमिस किया था गवर्नमेंट ने? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई थी और उस वोटिंग में अपोजिशन पार्टीज जीत गई थी कि वी डोंट हैव ट्रस्ट, वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए इमरान खान को जाना पड़ा था। In the history of Pakistan, there were no confidence motions. There were two no confidence motions. One was in 1989 against Benazir. The other one was against Imran Khan. Is it there? अच्छा, जो मोहम्मद अली बोगरा के खिलाफ हुआ था, उसने मोहम्मद अली बोगरा ने प्रपोज किया था कि नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ करो, लेकिन वो हुई वो और ठीक है वो, लेकिन जो एक्चुअल नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग भी हुई थी, दैट वाज इन टू टाइम्स, लाइक 2022 में हुई है और दूसरी ये बेनजीर भुट्टो के टाइम में। तो बेनजीर बेयरली सर्वाइव इन दैट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सबसे मेजर इशू ये ना, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं अलहदा कलर में ताकि आपको ये याद रहे, ये आपने सबसे ज्यादा डिटेल में याद करना है लाजमी। पक्का किला मैसेकर। पक्का किला मैसेकर, लेट मी जस्ट शो यू। पक्का किला, लुक एट दिस वन। इसको पुक्का नहीं बोलना, पक्का, इट वाज पक्का किला। दिस एरिया इज कॉल्ड पक्का किला एरिया। और ये किस एरिया के अंदर है, किस सिटी में है? किस सिटी में है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहां पे है? सिंध प्रोविंस में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद इज लोकेटेड इन सिंध। बेटा, दिस इज द अर्बन एरिया इन हैदराबाद प्रोविंस। लुक एट दिस वन, ये आपका अर्बन एरिया था। ये पक्का किला के एरिया में देयर इज वन कम्युनिटी लिविंग इन द सराउंडिंग्स ऑफ पक्का किला एंड दे आर कॉल्ड मुहाजिर। जो 1947 में इंडिया से शिफ्ट हुए थे, दोज पीपल सेटल्ड देयर। मुहाजिर्स की जुबान कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मुहाजिर्स? उर्दू लैंग्वेज थी मुहाजिर की। अब हुआ क्या पक्का किला मैसेकर? बेनजीर ordered police to open fire on protesters against Sindh government policies
क्लियर। अब बेनजीर ने सिंध में अयान कौन सी जुबान लगा दी थी, लैंग्वेज कौन सी थी सिंध के अंदर, सिंधी लैंग्वेज को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया था सिंध के अंदर। दे मेड सिंधी ए कंपलसरी लैंग्वेज इन सिंध प्रोविंस। इज इट क्लियर जी बेटा। सो अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट many people, many muhajirs were killed. यस बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे यार सारे, ठीक है। सो मेनी मुहाजिर्स वर, हाँ बस बेनजीर को पसंद नहीं था। सो मेनी मुहाजिर्स वर किल्ड as they did not want Sindhi language, कंपल्सरी सिंधी लैंग्वेज कर दें इसको अगर आपने नहीं लिखा तो। क्लियर। अब इससे नुकसान क्या हुआ बेटा, मुहाजिर्स आल्सो हैव देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। नाम सुना होगा कभी आपने, नाम मीम तो देखी होगी, पक्की बात है, जेंजी ने मीम्स देखी होती हैं। जेंजी से सिर्फ यही पूछना चाहिए, मीम्स देखी है आपने, देखी होगी, हाँ जी। इस अल्ताफ भाई की आपने मीम्स देखी होंगी, कभी देखी है आपने मीम्स, हैव यू एवर सीन। तो ये अल्ताफ भाई जो है ना, इनकी एक अपनी, ये बड़े अच्छे बंदे थे पहले, ही वॉज ए वेरी गुड बॉय, लेकिन बाद में इसको मुल्क से निकाल दिया, अब ये पाकिस्तान नहीं आ सकते। अल्ताफ भाई की एक पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज कॉल्ड MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, करंट नाम है, ओल्ड नेम वाज मुहाजिर कौमी मूवमेंट। क्लियर। सो मुहाजिर कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये देख रहे हैं आप, इसके अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, इसका नाम चेंज हो गया, अभी मुत्तहिदा कर दिया, लेकिन पहले प्रीवियसली इट वाज मुहाजिर कौमी मूवमेंट। इज इट क्लियर। सो ड्यू टू दिस इंसिडेंट, MQM broke alliance with Benazir, and it was difficult to control country without MQM। बेनजीर के लिए मुश्किल था बेटा, उसका एक अलायंस था, एक अलाइड पार्टीज थी, और उससे बेनजीर वाज वेरी स्ट्रांग इन गवर्नमेंट। और इसके बाद बेनजीर वाज आल्सो अनपॉपुलर ड्यू टू नेपोटिज्म एंड करप्शन। बेनजीर की नेपोटिज्म क्या थी? What was the nepotism of Benazir Bhutto? बेनजीर की नेपोटिज्म ये थी कि इसने अपनी अम्मा को भी हाई पोस्ट पे लगा दिया, अपने फादर इन लॉ को भी लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, मतलब फैमिली का कोई रिश्तेदार इसने छोड़ा नहीं जो अच्छी पोस्ट पे ना लगाया हो। सो नेपोटिज्म एंड करप्शन made Benazir unsuccessful। Clear? जी, सेक्टेरियन वायलेंस भी ये वो MQM की वजह से बेसिकली फैला था, ठीक है। उस वक्त कराची के आसपास में बहुत ज्यादा वायलेंस स्प्रेड हुआ था। क्लियर। वो कराया गया था, वो किसने कराया था, वो एक पूरा
स्टोरी है उसके पीछे, खैर उसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा, द लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बेनजीर was dismissed by, yes बेटा, हाँ, dismissed by प्रेसिडेंट इसहाक खान। बेटा आफ्टर जिया, who became the president of Pakistan? गुलाम इसहाक खान। जिया के बाद ये कैसे प्रेसिडेंट बन गया? हाउ he became the prime minister, president of the country? ये इलेक्शंस के थ्रू तो नहीं आया, नहीं, ये इलेक्शंस के थ्रू नहीं आया था। ये कैसे इसहाक खान प्रेसिडेंट बना था? नहीं, इंटरिम भी नहीं था। ओके, अच्छा ठीक है, आ गई है। अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी कि बेटा वो अलहदा से बाद में बनी, ठीक है, लेकिन इसको इसहाक खान प्रेसिडेंट कैसे बना? बेटा जब भी, जैसे आज जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, अगर जरदारी मर जाता है आज रात को, इलेक्शन आप फौरन तो नहीं करा सकते, एक बंदा प्रेसिडेंट बनता है उस टाइम तक के लिए, लाइक जैसे ही जरदारी फोत होगा तो इसके बाद एक, अल्लाह माफी दे, मैं क्यों दुआ कर रहा हूं उसके लिए, दुआ, जरदारी अगर उसको कुछ होते है तो जो हमारा इस टाइम का करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। इंटरिम और चीज होती है, इंटरिम इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अभी अगर कोई भी चेयरमैन सेनेट जो होता है वो प्रेसिडेंट बनता है, और नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है अगर आपका पीएम मर जाए। मतलब पीएम अगर शहबाज शरीफ को कुछ होगा तो स्पीकर होगा जो वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ये लॉ है, ये लॉ के अकॉर्डिंग है। क्लियर जी? प्रेसिडेंट इसहाक खान डिसमिस किया उसने किसको? बेनजीर को, बाय यूजिंग, एज ही यूज्ड 8th amendment over charges of corruption, mismanagement. But whenever presidents dismissed the prime ministers, they always used excuses to dismiss the prime ministers. Excuse क्या था? हर एक को, हालांकि खुद ज्यादा करप्ट होते थे, प्रेसिडेंट खुद ज्यादा करप्ट थे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को क्या डिक्लेयर किया एवरी टाइम? कि दिस प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट, दिस प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मैनेजिंग द कंट्री इफेक्टिवली, इसलिए इसको डिसमिस कर दिया मैंने। मतलब द एक्सक्यूज वन। लेकिन ओवरऑल however issue was over appointment of high ranked officers in military and judiciary. असल में हुआ ये था कि बेनजीर भुट्टो wanted someone as prime minister, as new army chief and the chief justice of Pakistan, but Ishaq Khan stated that without my permission you cannot appoint anyone, because according to 8th amendment, who was given the power to appoint high ranked officers? President. So when president was given power to appoint the high ranked officers, then बेनजीर भुट्टो ने कहा क्यों इसहाक खान को कि मुझे आप अपॉइंट करने दें इसको? तो इसलिए
इस बात पे इसहाक खान भाई को आया गुस्सा एंड ही डिसमिस्ड इट। अब ये जितने भी फेलियर्स हैं, इनमें से जो सबसे मेजर फेलियर आपने याद रखने हैं, द फेलियर्स व्हिच यू नीड टू मेमोराइज, आपको हर सूरत में पता होने चाहिए, जिसके ऊपर आप यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग, ये उसको टिक कर लें अपने साथ। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चाहे इधर से पढ़ें, चाहे नोट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ दिस वन, यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ दिस वन। क्लियर? अच्छा, you need to have knowledge of this one and this one. जी बेटा, किसकी बेन? हाँ, सक्सेसेस इतनी है बहुत बेटा। 2 साल में कितनी सक्सेस हो सकती है आपकी? आपको रूल दे दो, 2 साल में कितनी सक्सेसेस कर लोगे? थोड़ी होंगी ना। ये 3, ये टोटल 5 कॉजेज मैंने क्यों कही आपको? व्हाई आई एम जस्ट सेइंग, आस्किंग यू टू मेमोराइज द 5 कॉजेज। बेटा, a separate 14 marks question can be given on that thing, और वो क्वेश्चन क्या होगा? जैसे सबसे ज्यादा पता है कौन सी कॉज आ चुकी है एग्जाम में, लास्ट आपके एग्जाम में, पास्ट पेपर्स में? पक्का किला मैसेकर। Was पक्का किला मैसेकर the most important cause of dismissal of Benazir Bhutto in 1990? Now the chances for 14 marks in your paper, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसका मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन के चांसेस जस्ट 5% है। एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो चांसेस ऑफ क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन जो है उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जस्ट राइट दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सैंपल क्वेश्चन इज was Pakka Killa massacre the most important cause of dismissal of Benazir in 1990? अच्छा, इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है, आपको पता है। दिस चैप्टर इज द इजीएस्ट वन। आपको भी अब आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, हमेशा याद रखिएगा। और वो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें? आप 1990 वाली बेनजीर की टर्म्स की पॉइंट्स को 1996 वाली जो 3 से 6 के दरमियान जो टर्म थी उसके साथ मिक्स कर देते हैं। 90% बच्चों का आंसर अगर गलत होता है ना इस चैप्टर से, सिर्फ दैट इज द ओनली वन रीजन, दे मिक्स द पॉइंट ऑफ 1996 सेकंड टर्म ऑफ बेनजीर भुट्टो विद द फर्स्ट टर्म। इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? और ये वाले सवाल आने के कितने चांस हैं? ये वाले सवाल आने के कितने चांस होते हैं? अगर 14 का आएगा इस पोर्शन से तो 95% इसी के हैं। 95% चांस इसी क्वेश्चन के हैं जो इस चैप्टर से बन सकता है। डन एवरीवन? नॉट ओनली दिस 14 मार्क्स, बल्कि हर एक के डिसमिसल के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। इनकी हाउ सक्सेसफुल के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर एवरीवन? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? मेरे क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, वो उसमें था successful was Pakistan leadership from 1990, I mean like Benazir दो टर्म में नवाज शरीफ की पहली टर्म तो सिर्फ फिर उसमें सवाल था ये 1999 तक का, तो उसको जब स्ट्रक्चर कर रहे हो 14 मार्क है, तो उसके पैराग्राफ में किसका होता है? How successful was the government? You want to say कि how successful were governments between this year to this year, right? इसमें आप सबका एक एक सक्सेस लिखें, एक एक फेलियर लिखते हैं, सफिशिएंट। 3 टर्म्स हैं, तीनों का एक हाँ एक एक सक्सेस, सिर्फ जस्ट 1 सक्सेस ईच टर्म। लाइक बेनजीर का, नवाज शरीफ का पहली टर्म का एक सक्सेस लिखते हैं कि ही स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान, उसको एक्सप्लेन करें, एक सक्सेस नवाज का हो गया। बेनजीर का एक सक्सेस लिखें कि शी वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, एक सक्सेस हो गया।
फिर नवाज शरीफ का एक और लिखें दूसरी टर्म का सक्सेस, लाइक ही कंप्लीटेड मोटरवे, ये हो गया। इसी तरह फेलियर्स के अंदर आप यही पॉइंट्स लिखते हैं, क्लैश ऑफ कल्चर लिखते हैं एक, वो मोस्टली गवर्नमेंट्स किस लिए फेल हुई थी, क्लैश ऑफ कल्चर की वजह से। लॉस ऑफ यूएस एड इज द कंबाइंड पॉइंट इन ऑल दीज गवर्नमेंट्स, यू कुड राइट अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते। यस बेटा, हाउ सक्सेसफुल वर, तो मैंने देखा कि 1989 के ज़ियाउद्दीन टाइम पीरियड में जो प्रेसिडेंट थे ना कि हाँ। अब्दुल्ला खान उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हाँ। मैंने मार्क्स ही बोले थे, पॉइंट लिखा नहीं लिखा तो अगर आपका वो पॉइंट है तो यू कैन गेट मार्क्स। जी क्लियर जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आर आस्किंग क्वेश्चन। यस बेटा। सर अगर मैं कोई पास्ट पेपर सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं तो विल यू बी एबल टू चेक इट? जी बेटा भेज दीजिएगा, लेकिन Okay, उस पर टाइम लिमिट नहीं होगी, उस पर टाइम लिमिट नहीं होगी, टाइम लिमिट मैं ज्यादा लूंगा उसके ऊपर। वो असल में सर मॉक है ना, अच्छा मॉक है, कब है मॉक? कल। ओ माशाल्लाह, वो जल्दी याद आ गया। सर वो मैं कल सोच रही थी लेकिन चलो भेज दीजिएगा, मैं ओके देख। सर, थैंक यू। हिस्ट्री का सारी क्लास ही भेज दे, फिर मैं कल आपके टेस्ट वापस नहीं करूंगा। अच्छा, जिस चीज का मैं मॉक चेक करूंगा उसका मैं पिछला टेस्ट वापस नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, मैं सवाल ही बता दूं, ज्यादा बेहतर नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन?